Hello brothers, welcome to Khiladi 3K channel. Today I'm coming with the Asus motherboard, desktop motherboard, Asus M5A78 LMLX3 Plus. This is the model number of this case. This is very minor case study of the desktop motherboard of this model. आज आप लोगों के लिए एक आसूस का एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड का जिसका मॉडल नंबर M5A78L MLX3 है, उसका एक केस स्टडी, एक बहुत ही एक माइनर केस स्टडी यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि माइनर प्रॉब्लम था। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या था? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस माई मदरबोर्ड? प्रॉब्लम इज़ ऑन ऑफ प्रॉब्लम। On-off problem. So in this type of model, and this is the AMD architecture motherboard, you can see here AMD architecture, you can see here CPU socket AMD. It means in this motherboard AMD processor is attached and support. तो AMD architecture का बोर्ड था। अब ये on-off, for the on-off problem there are many reasons, there are many fault cause of this problem। तो जो ऑन ऑफ वाला जो प्रॉब्लम आता है उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। इन दैट वन रीज़न इज CPU thermal trip section, CPU thermal trip section. So in this motherboard, in the VRM section, there is the CPU thermal circuit available for, and this thermal trip section is used in motherboard for the sense of the CPU temperature, जो एक थर्मल एक सर्किट होता है, थर्मल ट्रिप का सर्किट डेस्कटॉप मदरबोर्ड में एक होता है, जो आजकल के बोर्ड में आ रहा है। प्रोसेसर का हीट जो होता है, टेम्परेचर, उसको सेंस करने के लिए एज अ सेंसर वो वहाँ पे काम करता है ये सर्किट। दिस सर्किट send the CPU temperature detail to your chipset, and if any problem in that circuit, then chipset not getting proper details of the CPU temperature, then PCH stop to generate the CPU clock, and also this circuit blocked full the VRM PWM section. So this problem coming, on-off problem is coming। CPU थर्मल सर्किट जो होता है उसका काम होता है कि CPU के टेम्परेचर की जो डिटेल है वो डिटेल चिपसेट को देता है। अगर ये प्रॉपर डिटेल चिपसेट को नहीं मिलती, चिपसेट के साथ बायोस हमारा जो अटैच होता है, बायोस उसको सेंस करेगा, बायोस में जो डिटेल दे रखी है उस हिसाब से उसको टेम्परेचर जो वहाँ से आना चाहिए उसको डिटेल नहीं मिलेगी, तो चिपसेट क्या करेगा, चिपसेट हमारा CPU क्लॉक जनरेट करना, CPU के लिए जो प्रोसेसर को क्लॉक जनरेट करके सेंड करता है वो स्टॉप कर देगा। साथ ही साथ ये सेक्शन क्या करेगा, VRM सेक्शन को भी पूरा ब्लॉक कर देगा, PWM IC को पूरा ब्लॉक कर देगा, ताकि कोर वोल्टेज भी अवेलेबल ना हो। और हमें पता है लैक ऑफ वोल्टेज इज़ द वन कोज ऑफ द ऑन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी सप्लाई का यहाँ पे अवेलेबल ना होना भी, ये भी एक कारण है हमारे इस लेटेस्ट मदरबोर्ड में कि ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम आता है। So you can see here in this motherboard, yes,
you can see here in this motherboard. This is the EPU VRM IC, and this transistor you can see here. This is for my thermal trip signal, this transistor. So whenever this type of problem coming because of this thermal trip section, just remove this component. So I first just remove this component, but after removing this component my motherboard getting now on, but after 1 minute it's again going to off. Before what problem, just power on and just is off, just in 2 seconds it's going to off. But now after removing this transistor my motherboard getting turn off after the 1 minute. पहले क्या होता था, प्रॉब्लम यह था कि जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो 1-2 सेकंड में ये ऑफ हो जा रहा था। अभी इस थर्मल ट्रिप सिग्नल वाले ट्रांजिस्टर को रिमूव करने के बाद मेरा मदरबोर्ड ऑन तो हुआ, डिस्प्ले तो नहीं आया बट ऑन हुआ मतलब कि वो पहले की कंडीशन से अब बेटर ऑन हो रहा था। 1 मिनट तक, एक अबाउट पूरा 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी कम ऑन रह रहा था, बट फिर वो अगेन ऑफ हो जा रहा था। तो फिर से वोल्टेज चेक करना था। सो आई चेक वोल्टेज ऑन दिस VRM चिप नंबर 43, पिन नंबर 43, and with this pin here these four resistors are connected. These 4 resistors are connected, and you can see I mark here from the red pen. In this resistor, this side 12 volt and this side 0 volt. This side 12 volt, this side 0 volt. So what happen here? First of all, I'm doubt here on this resistor. When I check this resistor value is showing 70 point something voltage here. Sorry, not voltage. 70 point something ohms resistor value. Its value in ohm. So first of all, maybe this resistor faulty. When I attach here, when I add here same value resistor 70 ohm, but it's not work. It means it's showing more value. Then I try 4.7 kilo ohm resistor. 4.7 kilo ohm resistor, because I have not same model, but in another model board view available of this VRM IC. When I check there is the 4.7 kilo ohm resistor. So I add here 4.7 kilo ohm and my work is done. When I try to power on motherboard, my motherboard getting power on and also my display is also coming. सो दिस इज़ द माइनर केस स्टडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक रजिस्टर था, एक 4 रजिस्टर होते हैं जो VRM चिप की पिन नंबर 43 के साथ कनेक्टेड थे। यहाँ पे एक रजिस्टर पे एक एंड पे 12 वोल्ट था, दूसरे एंड पे 0 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर मुझे डाउट लगा। जब मैंने इसको रजिस्टर को चेक किया तो सिर्फ 70 ओम्स की वैल्यू दिखा रहा था ये। तो दूसरा एक 70 ओम का मैंने लगाया बट वो काम नहीं किया, सेम कंडीशन, यानी कि कहीं ना कहीं रजिस्टर फॉल्टी था, एक अंदाज़ा मिल गया हमें। तो सेम मॉडल का तो कोई मतलब कि इसका जो रिवीजन था वो अलग था। इस दूसरे किसी मॉडल का जो बोर्ड व्यू था उसमें सेम नंबर की VRM IC लगी थी, उस पर देखा तो उस पर वहाँ पे 4.7 किलो ओम का रजिस्टर लगा था। तो यहाँ पे मैंने सेम 4.7 ओम्स का रजिस्टर ट्राई किया और जैसे ही चेक किया हमारा काम बन गया, डिस्प्ले की आ गया और बोर्ड कम्प्लीटली ऑन हो गया, डिस्प्ले भी आ गया। और इसको 1 आवर तक चेक किया, वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इंटेल के एक बोर्ड के बारे में। दूसरी जो मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, इंटेल का जो बोर्ड आता है
61WW, ठीक है। इसके बारे में, इसके बायोस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो हमें पता है 61 सीरीज़ का PCH आर्किटेक्चर का बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं इस बायोस में MA रीजन भी होगा। तो अब इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप इस बोर्ड में अपग्रेडेड प्रोसेसर लगाना चाहो, न्यू वर्जन का कोई प्रोसेसर लगाते हो, तो आपको इसमें 8 वर्जन का ME रीजन बायोस करना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, 8 वर्जन का अगर आप लगाते हो, 8 वर्जन का बायोस अगर आप लगाते हो, ME इसमें इंजेक्ट करते हो वर्जन 8 का, तो प्रॉब्लम क्या आता है कि इस बोर्ड में PS2 पोर्ट काम नहीं करेगा। इस बोर्ड में, यानी कि ये जो इमेज है वो तो मैंने सिर्फ यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए, ये इमेज नहीं है। जो इंटेल की बात कर रहा हूँ, इंटेल DH61WW। तो अगर आप 8 वर्जन का ME इसमें इंजेक्ट करेंगे ना, तो PS2 पोर्ट काम नहीं करेगा, साथ ही साथ आपका LAN पोर्ट भी काम नहीं करता। यानी कि ये प्रॉब्लम है बायोस का, ठीक है, बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोस का है। दूसरा कि अब 8 वर्जन का आप इसमें डालोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर आप 7.7 वर्जन का कोई ME इसमें इंजेक्ट करते हो, ठीक है, डिस्प्ले तो आता ही है दोनों बायोस में, बट 8 वर्जन में ये प्रॉब्लम आएगा कि PS2 और LAN पोर्ट काम नहीं करता। और 7 वर्जन अगर आप ट्राई करते हो, तो 7 वर्जन में क्या प्रॉब्लम आता है, 7 वर्जन में सिर्फ इतना प्रॉब्लम आएगा कि आपको डिस्प्ले जो होगा थोड़ा लेट मिलेगा, डिस्प्ले इसमें थोड़ा लेट आएगा। और हो सकता है 7 के वर्जन में अपग्रेडेड प्रोसेसर, लेटेस्ट वर्जन का प्रोसेसर आप इसमें ये नो डिस्प्ले दे दे। मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो है मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट है, जो हमें पता नहीं होता और हम लोग काफ़ी ट्राई करने में लगे रहते। तो इसलिए मैं आप लोगों का ये वीडियो में जो इंटेल DH61WW का जो कॉमन फॉल्ट है बायोस की वजह से, ME रीजन की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। Okay brothers, then thank you very much. Keep in touch with us in the Telegram, our channel and group, and get the latest information. And if you want to learn the desktop motherboard repairing from basic to advanced, please contact me and join our paid course, paid video based course. Now our video based course is available, in which we will give you password protected video, and you can watch anytime whenever you free from your home. अब हमारा डेस्कटॉप मदरबोर्ड का वीडियो बेस्ड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम पे ही सारे वीडियो दे दिए जाएंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वीडियो जो होंगे, जो आप एक ही मशीन में चला सकते हो, वो भी अवेलेबल है। यानी कि अब हमारा वीडियो बेस्ड कोर्स भी अवेलेबल है। ओके ब्रदर्स, देन थैंक यू वेरी मच।